आज सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो अवचेतन मन होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है. सो when we attract things in our life, or rather we want to create something in our life to attract certain things, we have to take help, or we have to make use of our subconscious mind. हम कितना भी पॉजिटिव हो जाए कॉन्शियसली, हम कितने भी एफर्ट्स करें कॉन्शियसली, जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व नहीं होता हमारे साथ, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता. मतलब अगर हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं कॉन्शियसली, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैकग्राउंड में कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ना कि जो हम कॉन्शियसली सोच रहे हैं. और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और वो ही नेचर के साथ जुड़ा होता है. तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे जब भी कोई नेगेटिव चीज होती है, whenever there is something negative, especially today in this outbreak of coronavirus, how we can keep ourselves positive and make sure that despite any negativity, I attract only positive things in my life. Be it my finance, be it my health, be it my relationship, be anything and everything in my life. So let us understand how it works. Friends, whatever you take inside through your sensory organs, जो भी आप आँख से, कान से, फीलिंग से, टेस्ट, स्मेल से या अपनी बातों से अंदर लेते हैं, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है. एंड सबकॉन्शियस माइंड डजंट हैव अ लॉजिक माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक. So for example, if you keep watching news channels and you keep listening to such kind of videos, or you keep discussing or talking about negative things, happenings in the world, everything gets recorded in your subconscious mind and it affects your inner world. Ignorantly, you create a disaster within you without any knowledge, without understanding. You feel it's a normal way of living and you're just watching something or you're just hearing something, but you don't know that everything that you're watching and everything that you're hearing, everything you're talking with emotion, when you're putting feelings in it, it is all going within you and it is creating one reality within, and that reality within is creating your outer reality. अभी ये डिसास्टर भी है और ये एक मैजिक भी है. ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं. तो अगर लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी हो रही हो, हमारे आजू बाजू कुछ हो रहा है, हम कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को फीड कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन से, तो हमारे अंदर पिक्चर्स क्या बनेगी, हमारे अंदर साउंड्स क्या बनेंगे, हमारे अंदर क्या फीलिंग्स होंगी, फियर की, इनसिक्योरिटी की. जाने अनजाने में ही सही हम एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे. और क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन नेचर के साथ जुड़ा है, knowingly or unknowingly, when we are doing this, we are attracting negative things in our life. Not necessarily what you see, but it can come in any form. So I always say that do not depend on predictions, rather create your life with your own power. And what is your power? These sensory organs of yours. What is your power? Your subconscious mind. Use it wisely. Make sure you take things and you relive the experiences that you want in your life. For example, अगर आप wellness चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी wellness बनी रहे, आपकी health बनी रहे, ऐसे कंडीशन में आप हेल्दी रहे, ऐसे कंडीशन में भी आपका फाइनेंस बना रहे, आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, तो आपको वही इंफॉर्मेशन लेनी है आपके सेंसरी ऑर्गन से जो पिक्चर्स बनाए आपके हेल्थ के, आपके सक्सेस के, आपके प्रॉस्पेरिटी के अंदर, जो फील करवाए आपको आपके इनर वर्ल्ड में कि आप सेफ हो, आप हेल्दी हो, आप सक्सेसफुल हो, एंड यू आर सर्टन टू अट्रैक्ट सक्सेस नो मैटर व्हाट इज द condition or what is the situation. When you do this continuously without applying your logic and making a wise choice
to take everything positive, to speak positive, to hear positive, to see positive, to feel positive. You empower yourself, and you also make it sure that you attract positive things in your life, no matter what is the negativity going on around you. So this is the power of your mind. And I hope that in this time, you use your power very wisely. क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन होगी. आप में इनफाइनाइट हीलिंग पावर्स है. हमारी खुद ही के अंदर इतना कुछ है. अगर हमें इसे वाइजली यूज करना आ गया, तो हम लाइफ में हर चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हम ये सब किसी चीज को ओवरकम कर सकते हैं. ये हमारी इग्नोरेंस है, हमें मालूम नहीं है. हमारा सेल्फ लव एनहांस नहीं हुआ है. हमने अपने आप को प्यार नहीं किया है. एंड सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है. सेल्फ लव का मतलब है अपना ध्यान अपनी ओर लेके आना, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे अवचेतन मन में क्या चल रहा है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं, ताकि हम वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सके जो हम अपने जीवन में चाहते हैं. तो आपको करना क्या है बता देती हूँ. बहुत सिंपल है. So whenever you are at home, whenever you get time out of your work, when you are free, try creating all positive pictures. Tune yourself to videos, to audios that are positive, that gives you affirmation. Feel the beautiful world inside you. And that time don't apply logic that this is not the reality. Friends, we never knew that we will be in the lockdown period. When 2020 came, we wished everyone happy new year. हमारे पास कोई प्रेडिक्शन नहीं था. हमें नहीं पता था हम ऐसी परिस्थिति में आएंगे. तो जिंदगी बदलती रह रही है. Situations are changing. We have no idea what is tomorrow going to bring us. So when we have no idea about it, why to think so much of logic, and why not to create the magic within? Because the magic works. आप जो भी अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, जो भी आप फील करेंगे, जो मूवी आप देखेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो ही मूवी आपकी जिंदगी की बनेगी. यू आर द स्टार माय डियर फ्रेंड. आप आपकी मूवी के स्टार हो. आप आपकी मूवी के एक्टर हो. एंड अब आप डिसाइड करोगे. आप ही डायरेक्टर हो, आप ही एक्टर हो, आप ही सब कुछ हो. अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी मूवी सक्सेसफुल बने या ना बने, कि आपकी मूवी हॉरर बने या आपकी मूवी सक्सेस स्टोरी बने. इतना पावर आपके अंदर है. सो डोंट वेट फॉर एनी प्रेडिक्शन. जस्ट क्रिएट एंड क्रिएट व्हाट यू वांट. सो एनी टाइम एंड एवरी टाइम you watch something, you hear something, you speak something, you feel something, ask yourself, do I really want this? Do I want to get involved in such kind of discussion? Do I need to watch this? Do I really want to attract this in my life? आप जो चाहते हैं, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में पैसा आते रहे, आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे हर चीज में, तो आप वही करिए, आप वही देखिए, आप वही सुनिए. बिलीव मी, आप ये करके तो देखिए. सबसे पहली चीज जो आपके साथ होगी ना, वो होगी कि आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी और आपका स्ट्रेस चले जाएगा एक ही झटके में. इतना सिंपल है. बस आपको अपने आप से प्यार करना है. प्यार करने का मतलब, मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूं कि मैं डिप्रेस नहीं रहूंगी. मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूं कि मैं एंशियस नहीं रहूंगी. मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूं कि मैं स्ट्रेस में नहीं जीऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास पावर है चीजें बदलने के लिए. और अगर मैं चाहती हूं तो मैं कोई भी चीज बदल सकती हूं. मैं आज कहीं पे भी हूं और मैं कहीं भी जाना चाहती हूं, मैं जा सकती हूं. बिकॉज यही सत्य है. दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द रियल विजडम ऑफ सेल्फ. एंड इफ यू कैन लिव दिस, if you can train your mind doing this, then you will see, no matter what, you will find yourself in happiness, in joy, in success, in wellness all the time. And if you could do that, you will spread this positivity to everyone in your family, to everyone in your friend circle, in your group, in your society. One positive person can make a great impact, just like one negative person can make a great impact. But the choice is yours.
तो आज जब हम लॉकडाउन पीरियड में हैं, हमें देखना है हमारे अवचेतन मन में क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फीलिंग अच्छी नहीं है, आपके अंदर की मूवी अच्छी नहीं है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी चल रही है, तो उससे डिस्कनेक्ट हो जाना। वही देखना, वही सुनना, वही बोलना, वही महसूस करना जो आप चाहते हैं। रेफरेंसेस लेना, बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको, गूगल पे भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज मिल जाएगी आपको, अपनी ही पास्ट में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे पास्ट की पेनफुल मेमोरी से ही जुड़े हुए हैं। इतनी अटैचमेंट है हमें कि हमारे पास की जो अच्छी मेमोरी है उसको हम याद ही नहीं करते। आज याद कर लेना, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी बहुत सारी मेमोरीज है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल स्टेट में है, आपको मदद कर सकती है वो क्रिएट करने में जो आप चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपकी खुशी, आपकी जॉय, आपकी सक्सेस किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये सिर्फ आप ही के ऊपर निर्भर है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड और आपकी इमोशन पे निर्भर है। ये आपको करना है। ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं बोलती कि आपको प्रिकॉशंस नहीं लेने हैं, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेने हैं, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। उसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड दिया है, आपको लॉजिक माइंड दिया है कि आप प्रैक्टिकल रहे, अपने जो भी स्टेप्स लेने हैं आपको वो सारे स्टेप्स आप ले। लेकिन जो आपका रियल पावर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। पॉजिटिव होना मतलब पैसिव होना नहीं है। पॉजिटिव होना मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई एक्शन ना ले, आप इररिस्पॉन्सिबल बन जाए, आप केयरलेस बन जाए, आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। पॉजिटिव इसलिए बनना है ताकि आप अपने रिसोर्सेस अच्छे से यूज कर सके, इफेक्टिवली।